اللہ کی تلاش انسان کو انسان کے پاس لے جاتی ہے اور وہ اسے راز آشنا کر دیتا ہے۔ بلے شاہ سرکار کو شاہ عنایت کے پاس، نظام الدین اولیاء کو بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس، بابا فرید گنج شکر کو قطب الدین بختیار کاکی کے پاس، قطب الدین بختیار کاکی کو خواجہ معین الدین چشتی کے پاس، خواجہ معین الدین چشتی کو خواجہ عثمان ہارون کے پاس، رومی کو شمس تبریزی کے پاس اور علامہ اقبال کو مولانا رومی کے پاس، ہر کسی کو کسی نہ کسی کے پاس۔ وہ اسی لیے صوفی برکت علی لدھیانوی نے فرمایا کہ اب ڈھونڈ رہبر، رب مل جاتا ہے رہبر نہیں ملتا، فقیر فقیر کا رازدار ہوتا ہے، دنیا غم کا اور فقر اللہ کا نام ہے، دنیا تو مشکلوں اور پریشانیوں کا گھر ہے اور فقر اللہ کی محبت اور قربت کا گھر ہے۔ ایک دن ایک جٹ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا دنیا داری زیادہ نہیں جانتا، عشق حقیقی سمجھنا ہے۔ بابا جی نے کہا یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ کہنے لگا اپنی بھینس سے کرتا ہوں۔ بابا جی نے کہا آج سے تمہارا سبق یہی ہے کہ اسے دیکھتے رہو۔ 6 مہینے تک بندہ خوش ہو گیا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ اپنی بھینس کو 6 مہینے تک دیکھتے رہو، بندہ خوش ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد حاضر ہوا تو بابا جی نے پوچھا کہ کون؟ اس نے کہا جٹ۔ بابا جی نے پھر حکم دیا جاؤ اور 6 مہینے بعد آنا۔ جس دن وہ بابا جی کو ملنے آیا تو دروازے سے سر ٹکرا کر واپس ہو جاتا، اندر نہیں جا رہا تھا۔ بابا جی نے اسے پوچھا کہ بھائی اندر کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا بابا جی اندر کیسے آؤں؟ میرے دونوں سینگ اس دروازے میں پھنس جاتے ہیں۔ بابا جی نے ہنستے ہوئے کہا جاؤ آج تمہارا سبق پورا ہو گیا۔ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی۔ جب تک عشق حقیقی حاصل نہیں ہوتا، عشق مجازی کی سیڑھیاں چڑھنا ہی پڑتی ہیں، اور عشق مجازی جو ہے وہ مرشد کے حکم پر چلنا اور مرشد کی ہاں سے ہاں ملانا اور مرشد کے دل سے دل ملانا ہوتا ہے۔ مرشد جو ہے وہ انسان کو جو فقر کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے بناتا ہے، یہ مرشد کا ہی کمال ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو ذوق یقین اور مرشد کی نظر اور مرشد کا فیضان ہی آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عشق مجازی ہی عشق حقیقی کی سیڑھی بنتا ہے، اور عشق حقیقی ان لوگوں کو ملتا ہے جن کی نیتیں صاف ہوں، جن کا دھیان صاف ہو، جن کی سوچ پاک ہو، اور جو ماں باپ کے فرما بردار ہوں، اور جن کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویکلی ہاروسکوپ، اور ویکلی ہاروسکوپ میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے کمنٹس کا ایک لائیو سیشن کر رہے ہیں، جس میں آپ لوگوں کے بتائے گئے سوالات کو پراپر طور کے اوپر دیکھا جاتا ہے، اس کو نمرولوجی سے، اسٹرولوجی سے، استخارہ سے، ٹیرو کارڈ سے اور مختلف روحانی مخلوقات کی مدد سے آپ کو جو وظائف اور پڑھائیاں بتائی جاتی ہیں، وہ وظائف اور پڑھائیاں آپ کے معاملات میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی سیٹرڈے والے دن، اس میں آپ لوگوں کے جو بتائے گئے ہوئے سوالات ہیں ان کا پراپر جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر جن لوگوں کی جو پریڈکشنز ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی انفارمیشن مکمل بتائی جائے، تو وہ ہمیں پرسنل رابطہ کر کے بھی اپنی انفارمیشن بتا سکتے ہیں۔ اس سے ہم آپ کا برتھ چارٹ اور آپ کی جو تفصیلی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ڈسکس کر سکیں گے، اور آپ کو وہ انفارمیشن بتا دیں گے جس سے آپ لوگوں کے روحانی اور ظاہری معاملات میں استخارہ کے ذریعے مدد ملے اور اللہ کی رحمت شامل حال۔ ایریز کی بات کریں اور ایریز والے ستارہ مری کی بات کریں تو فائر سائن آپ لوگوں کا، اور آپ لوگوں کے لیے خاص کر خوشخبری اس ویک میں کہ آپ کو ہم ڈے بائی ڈے پریڈکشن بتانے والے ہیں، اور ڈے بائی ڈے پریڈکشن میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے تھیم آف دی ویک، یعنی کہ اس ویک میں
होने वाला क्या है, आपके मामलात बनने वाले क्या हैं, चीज़ें किस तरफ जाने वाली हैं। सबसे पहले तो आप अगर काम कर रहे हैं या अपने शोबे से मुंसलिक हैं तो कामों का अंबार आने वाला है, चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा काम आपके पास कलेक्ट होने वाला है। इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि शायद कामों के बोझ की वजह से आपकी तबीयत कुछ उकताहट का या थकावट का जो है अजहार कर सकती है, इसलिए आपने अपने कामों को बड़े अच्छे तरीके से करना है। काम ज़रूर आ रहे हैं मगर तबीयत पे बोझलपन और तबीयत में थकावट भी हो सकती है। तो चलते हैं आप लोगों के डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। तो डे बाय डे प्रिडिक्शन में मंडे का दिन, पीर का दिन आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। मंडे वाले दिन अगर आप लोग अज़दवाजी मामलात में परेशानी का अगर आप लोगों को सामना है या चीज़ों का रुकावटों का सामना है तो मंडे वाला दिन, पीर वाला दिन आप लोगों के अज़दवाजी मामलात में बेहतरी ला सकता है, घरेलू मामलात में खैर व बरकत ला सकता है, रिश्तों के मामलात में खैर व बरकत ला सकता है। तो पीर वाले दिन आपके मामलात में बेहतरी है। और ट्यूसडे वाले दिन आपके पास काफ़ी चीज़ें कलेक्ट होंगी, काफ़ी चीज़ें आपके सामने मौजूद होंगी। आप किसी भी चीज़ में हाथ डाल के अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं और मामलात आपके कंट्रोल होते हुए नज़र आएंगे। जो माली परेशानियां हैं या माली मुश्किलात हैं या जो रुकावटें हैं वो काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आएंगी और आप अपने मामलात में काफ़ी पेशरफ्त करते हुए नज़र आएंगे। और थर्सडे वाला दिन आपका अपने पेरेंट्स के साथ गुजारने वाला, मशावरत करने वाला, अपने मामलात में तगोदो करने वाला और कोई डिसीजन लेने वाला दिन हो सकता है। थर्सडे वाले दिन आप लोग अपने घरेलू मामलात में और अपने अज़दवाजी मामलात में अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्गों को साथ ज़रूर लेके चलिएगा ताकि आपके मामलात में पेशरफ्त और चीज़ें ठीक हो जाएं। फ्राइडे वाले दिन जो होगा जुम्मा का दिन, उसमें आप ब्लैक एंड वाइट यानी कि चीज़ों को लिख पढ़ के साथ और रसूल के साथ चलेंगे, कोई रुकावट नहीं है और आप अपने ज़िंदगी के रस्तों को आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हैं और आपके कामों में अल्लाह की ख़ास मदद भी मिलती हुई नज़र आती है। और सैटरडे वाला दिन, हफ्ता वाला दिन, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत, नए इरादे, नए जज्बे, हर मौजू पे, हर जगह पे आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। चाहे वो तुलबा तलबात हों, चाहे वो आपके रूहानी अमूर हों, चाहे वो आपके मामलात किसी भी रुख पे जाएं, मरीख की पोजीशन आपके मामलात को कामयाबी की तरफ लेके जाती हुई नजर आती है। और संडे वाले दिन आप लोग कोई प्लानिंग कर सकते हैं, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाने की भी प्लानिंग हो सकती है और आप लोगों को अपने ख़ानदान में वालिदैन की तरफ से या कोई औरत की तरफ से कोई ख़ास मदद मिलती हुई नजर आएगी और ये मदद आपके मामलात में मुआवन साबित भी होगी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में नजर आएंगी। तो एरीज वालों के लिए ओवरऑल ये वीक जो है बहुत कुछ करने का है, रास्ते साफ, मंजिलें साफ और कुछ कर गुजरने की ठान कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। मुश्किलें और परेशानी अपनी ज़िंदगी में वैसे ही ना आने दें। आपने तो हमेशा ही ज़िंदगी में तगोदो, मेहनत, जिद्दोजहद को अपना शुआर बनाया है। हाँ, अगर किसी की रीडिंग में कोई चीज़ें रुकी हुई हैं या चीज़ें इन कार्ड्स की रीडिंग के मुताबिक नहीं आती तो ज़रूर अपना इल्मुल अदास से, नाम से, वालदा के नाम से ज़रूर बस चार्ट चेक कीजिएगा कि आपके स्टार्स की पोजीशन तो ठीक है और आपकी पोजीशन क्यों ठीक नहीं। इसलिए आपने ध्यान से अपनी प्रेडिक्शन को देख के फैसला करना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर। टॉरस की बात करें और बुर्ज सौर की बात करें कि इस वीक में आप लोगों के लिए कौन सी नई तब्दीलियां आने वाली हैं। सितारा ज़ोहरा वाले और अर्थ साइन आप लोगों का और 6 नंबर लकी और जुमा का दिन आप लोगों के लिए फेवरेट। और इस वीक में आप लोगों के लिए लाइट ग्रीन कलर सूट करता हुआ, मगर हम देखेंगे कि सबसे पहले बुर्ज सौर वालों का थीम ऑफ द वीक क्या है। बुर्ज सौर वालों का, टॉरस वालों का, सितारा ज़ोहरा वालों का थीम ऑफ द वीक इस वक्त रिज़्क के मामलात जो हैं वो आप लोगों की ज़िंदगी का
मकसद बनेंगे। आपके जो रिज़्क के मामलात हैं या रूहानी मामलात, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। आपका विजन, आपकी जो विजडम है, आपकी जो रूहानियत है, वो आपको साथ साथ लेके जाएगी। इस वीक में दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके चलेंगे और थीम ऑफ द वीक में आपके रिज़्क के मसाइल भी हल होते हुए नज़र आते हैं। मंडे की बात करें आप लोगों की, टॉरस वालों की, तो मंडे वाले दिन आप लोग शेयरिंग कर सकते हैं अपने मामलात की किसी फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ और रिश्तेदारों के साथ और अहलो अहबाब के साथ अपनी पार्टनरशिप कर सकते हैं और मामलात को बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। पार्टनरशिप का दिन है और मिल के काम करने का दिन है और चीज़ों को आगे लेके जाने वाला दिन मंडे का दिन आप लोगों के लिए। और ट्यूसडे वाले दिन आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद होंगी और एक ऑप्शन आप सॉलिड तरीके से लेके चलेंगे और ये जो ऑप्शन होगी आपकी, ये आपको आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री का विजन भी दे सकती है, रास्ता भी दिखा सकती है। और आप कोशिश करेंगे कि शायद ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी भी जाएं अपने रिज़्क के मामलात के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए। और वेडनेसडे वाला दिन, बुध का दिन, आपको एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिज़्क के मामलात में। जिनके स्टॉक एक्सचेंज में अपने पैसे लगे हुए हैं उनको भी खबर मिल सकती है अच्छी, और जिन्होंने अपनी सीवीज दी हुई हैं और जो अपने जॉब के मसलों में परेशान हैं और जो अपने कारोबारी मामलात में डिस्टर्ब हैं, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और थर्सडे वाला दिन आपके लिए कोई ख़ास पैगाम आने वाला है। जिनकी शादियां नहीं हो रही, मंगनियां नहीं हो रही, या रिश्ते रुके हुए हैं, या रिश्तों का दिन भी कहा जा सकता है या कारोबारी दिन भी कहा जा सकता है, पैगाम मिलेगा आपको अपने दोस्त अहबाब की तरफ से, या रूहानी पैगाम या कोई ख्वाब या कोई ऐसी चीज़ आपकी नज़र से गुजरेगी जो आपके मामलात में मुआवन साबित हो सकती है। और फ्राइडे का दिन आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें लेके आने वाला है। फ्राइडे वाले दिन आपकी चीज़ें रुकती हुई नज़र आती हैं और रुकावटें और कोई ऐसा गलत काम जो आप लोगों के मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए फ्राइडे वाला दिन इंतहाई होशमंदी के साथ, ध्यान के साथ और अल्लाह की ऊपर तवज्जो के साथ गुजारना है। जुमा आपका बेशक लकी दिन है, मगर इस जुमा में आपको एहतियात और सदका ज़रूर देना है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। और सैटरडे वाले दिन आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। आप कोशिश करेंगे, सैर व तफरी का प्लान बन सकता है, कामों के लिए आउट ऑफ सिटी या कंट्री जा सकते हैं। और बच्चे भी अपनी तालीमी शोबा में अपनी महारतें दिखा सकते हैं और मामलात खैर बरकत के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और संडे वाले दिन आप लोगों को एक ख़ास अपॉर्चुनिटी अपनी वालदा की तरफ से और अपने वालिदैन के अलावा आपके करीबी लोगों की तरफ से किसी औरत की तरफ से मिलती हुई नज़र आती है। ये अपॉर्चुनिटी आपके मामलात को आगे मज़ीद लेके जाएगी और चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएंगी। और इस वीक में ख़ासकर आपको रूहानी सुकून और रूहानी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। इसलिए ध्यान के साथ वीक को गुजारना है और पॉजिटिव होकर सोचना है और कुछ कर गुजरना है। और हमें कमेंट करना नहीं भूलना। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं और हम आपके कमेंट्स के लिए एक ख़ास वीडियो बना रहे होते हैं जो आपको हर सैटरडे वाले दिन लाइव प्रोग्राम में आपको शेयरिंग की जाएगी, आपकी बातों की और आपकी चीज़ों की। उस प्रोग्राम का नाम भी हमने रखा है कि आपकी जो भी बातें हैं वो शेयरिंग के ज़रिए और ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए बताई जाएं और आपके मसले का हल किया जाए। अल्लाह आपका हम नासिर। हज़रत मौलाना गौस अली शाह पानीपत रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या बयान किया है कि एक शख्स किसी आशिक़े दरवेश की खिदमत में जाता, उनकी सोहबत में बैठा रहता और अपनी कोई मुराद या हाजत पेश ना करता। एक रोज़ वो दरवेश पूछने लगे, तुम रोज़ाना आते हो और बैठकर चले जाते हो, हर कोई अपनी मुराद और हाजत पेश करता है, दुआ के लिए कहता है, मगर तुमने कभी कुछ नहीं कहा, आखिर तुम किस लिए आते हो? वो शख्स कहने लगा कि हुजूर, मैं तो इश्क की चंगारी लेने आता हूँ, मैं फक्त ये चाहता हूँ कि मुझे इश्क की आग लग जाए। ये सुनकर मर्दे दरवेश चुप हो गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दोबारा पूछा। उस शख्स ने कहा कि मेरा तो बस एक ही मुतालबा है। वो बुजुर्ग फिर चुप हो गए। इसी तरह कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर पूछा तो उसने अपना मुतालबा दोहरा दिया कि मुझे इश्क की चंगारी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
اس پر وہ بزرگ کہنے لگے کہ کل جنگل میں فلاں جگہ جانا، وہاں ایک شخص پڑا ہوا نظر آئے گا، اگلے دن آ کر مجھے اس کی حالت بتانا۔ اگلے دن وہ شخص جنگل میں اس مقام پر گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک شخص پڑا ہوا ہے جس کا سر، بازو اور ٹانگیں دھڑ سے جدا جدا تڑپ رہے ہیں اور خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر وہ شخص واپس بزرگ کے پاس آیا اور لوگوں کے جانے کے بعد بزرگ سے کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس شخص کا ہر عضو دھڑ سے جدا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ یہ سن کر اس درویش نے کہا کہ عاشقوں کا یہی حال ہوتا ہے، اور اگر یہ حال قبول ہے تو عشق کی چنگاری دے دیتا ہوں۔ وہ لوگ جو عشق و محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، ان سے محبوب اور طرح پیش آتا ہے، اور جب وہ عشق و محبت کا دعویٰ کریں تو محبوب کا وتیرہ بدل جاتا ہے، اب وہ اور طرح سے آزماتا ہے۔ انہی عشق و محبت والوں کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، اور ہم تم کو کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ جو عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں آزمائش کی بھٹی پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور خوف و بھوک کے ساتھ مال و جان اور دوسری نعمتوں میں کمی کر کے آزمایا جاتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ لوگ جو دعوی محبت کرتے ہیں کہاں تک سچے ہیں۔ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی، پاؤں پہ چھالے ہوں گے، ہاں وہی لوگ تیرے چاہنے والے ہوں گے۔ برجوزہ کی بات کریں، برجوزہ جو ہے ان کی اگر بات کرتے ہیں تو ستارہ عطارد اور بدھ کا دن اور 5 نمبر لکی ہے آپ لوگوں کا، اور اس ویک میں عطارد والوں کے لیے، برجوزہ والوں کے لیے خاص خوشخبری، اور وہ خاص خوشخبری اس طرح کی آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کو خوشی والا ماحول رہے گا، آپ کے معاملات میں خیر و برکت نظر آتی ہے، کافی دیر کے بعد آپ کی چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، مگر منڈے والا دن آپ لوگوں کو سٹریٹ فارورڈ رہنا پڑے گا، چاہے وہ ازدواجی معاملات ہیں، چاہے گھریلو معاملات ہیں، چاہے تعلیمی شعبہ جات ہیں۔ سیدھی سیدھی بات، سٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کریں، جس سے بھی بات کرنی ہے رکے نہیں، شرمائے نہیں، جو بات منہ پہ آتی ہے وہ کریں، اس سے آپ کو رزلٹ ملے گا۔ دبی لکی چھپی بات آپ کو نقصان کی طرف لے جا سکتی ہے۔ سٹریٹ فارورڈ ہونے کا دن ہے منڈے کا، اور ٹیوزڈے والا دن اپنی فیملی کو وقت دیں گے، اپنے گھر والوں کو وقت دیں گے، اور اپنے معاملات کو آگے لے کے جائیں گے، اور اللہ کی خاص مدد ملے گی، اور خاص کر فیملی والا دن کہہ سکتے ہیں۔ ویڈنسڈے والا دن، بدھ کا دن، محتاط رہیے گا، دشمن آپ کے معاملات کو، آپ کے گھر کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، کسی عورت کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا، آپ ارد گرد خبر رکھیے گا، چیٹنگ ہونے کے چانسز موجود ہیں، چاہے وہ لو افیئرز ہو، چاہے وہ گھریلو ماحول ہو، چاہے وہ آپ کے ارد گرد کے معاملات یا قریبی یا محبت کرنے والے یا خیر و برکت کے ساتھ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے والے ہوں۔ آپ نے دھیان کے ساتھ اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ مسئلہ کہیں موجود نہ ہو۔ تھرسڈے والا دن آپ کی پوزیشن کو مستحکم کر سکتا ہے، پیسے کی فراوانی ہو سکتی ہے، کوئی ڈیلنگ ہو سکتی ہے، آپ مستحکم طور پہ اپنے معاملات میں نظر آئیں گے۔ اور فرائیڈے والے دن آپ کو کوئی خاص اپرچونٹی مل سکتی ہے، کوئی کام مل سکتا ہے، آپ اپنے کاموں میں اللہ کو مددگار پا سکتے ہیں، اور چیزیں کافی حد تک آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گے۔ اور سیٹرڈے والے دن آپ لوگوں کو دولت کے، پیسے کے، مشکل کے اظہار کے ساتھ اپنے معاملات کو چلانا پڑے گا۔ پیسے کی کمی کا ایشو ہے، پیسے آپ کے پاس آئیں تو معاملات ٹھیک ہو سکیں گے، اس لیے سیٹرڈے والے دن صدقہ ضرور کریے گا، کوئی ایسا صدقہ کریے گا جو آپ کے معاملات میں معاون ثابت ہو۔ سنڈے والے دن آپ کے پاس 2-3 آپشن آلریڈی موجود ہوں گی، مگر ایک آپشن آپ کے پاس آئے گی، اس ایک آپشن کے اوپر آپ سوچ بچار کریں گے۔ جن کی شاید سی ویز جمع ہیں، یا جن کے شاید رزق کے معاملات ہیں، یا جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، وہ ایک آپشن کے اوپر غور کر سکتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر استخارہ کر کے اس کو دیکھیے گا کہ جو آپ کے لیے بہتر ہے اس کو آپ عملی اقدامات کے ساتھ لے کے آئیے گا، اور بیسیکلی اس پورے ویک میں آپ خوش رہنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس تھیم آف دی ویک میں آپ کو زیادہ خوشیاں اور انجوائمنٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی۔
बुर्ज, सरतान और कैंसर की बात करें कि ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो इस वीक की ख़ास बात कि आप अपनी तमाम बातें अपने तक रखिएगा, यानी कि बातें छुपा के रखिएगा। राज की बात राज ही रहने दीजिएगा और किसी के साथ मिलकर बातचीत करके अपने राज को ना उगल दीजिएगा, वरना नुकसान होने का अंदेशा है और आप इस चीज़ की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं। और अगर हम मंडे की बात करें आप लोगों की, तो मंडे वाले दिन आप लोग अपने बुज़ुर्गों से मदद ले सकते हैं। आपके मामलात मशावरत के साथ आगे जाएंगे। आपके वालिदैन आपके मामलात में मददगार साबित हो सकते हैं। फ़कीर किसी को सदका दे सकते हैं, जिससे मामलात में बेहतरी हो सकती है और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ट्यूसडे वाला दिन आपकी शख्सियत को, आपके मामलात को एक निखार और आपकी तबीयत को एक वजदाना अजहार के साथ मोतबर शख्सियत वाला बना देगा और आपकी अहमियत को माना जाएगा, चाहे घरेलू ज़िंदगी हो, चाहे बाहर की ज़िंदगी हो, चाहे आपके कारोबारी शोबाजात हों, चाहे आपकी अज़दवाजी मामलात हों, आपकी बात को अहमियत दी जाएगी। और बुध वाले दिन आपकी चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हुई नज़र आती हैं। खुशी के दिन आप ये सारी चीज़ें गुजारेंगे, पैसे की फरावानी हो सकती है और रिज़्क़ की तंगी के जो मामलात हैं वो दूर होते हुए नज़र आते हैं। और थर्सडे वाला दिन आप लोगों के अज़दवाजी मामलात में और जिनकी शादियाँ, मंगनियाँ या रिश्तों के मामलात हैं, अपने दिन पक्के करवा सकते हैं और ज़िंदगी को आगे लेके जा सकते हैं। और लव अफेयर्स में बड़ी पेशरफ्त नज़र आती है थर्सडे वाले दिन। और फ्राइडे वाले दिन काफ़ी चीज़ें आप लोगों के हाथ मौजूद होंगी, काम कर सकते हैं और नए इक़दाम कर सकते हैं, खैर व बरकत के साथ अपने मामलात को ठीक करने की तरफ ले जा सकते हैं। और सैटरडे वाला दिन भी काम वाला दिन है, काफ़ी काम इकट्ठा हुआ है, अपने काम को ठीक करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर पेशरफ्त नज़र आती है और कोशिशें नज़र आती हैं कि आप इन कोशिशों को बराबर करके अपने रिज़्क़ के मसाइल को ठीक कर लें और रिज़्क़ के मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएं। संडे वाला दिन आप लोगों के लिए एक ख़ास अपॉर्चुनिटी ला रहा है, एक ख़ास अल्लाह की मदद गायबी तरीके से आ रही है और आपके मामलात काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में होते हुए नज़र आएंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक सिमटी और आपके हक में जाती हुई नज़र आएंगी। इसलिए कर गुजरने का वीक है, अच्छी अच्छी ख़बरें सुनाइए और अच्छे अच्छे काम करके अपने मामलात को अल्लाह के हजूर कामयाबी के साथ अपने आप को कामयाब व कामरान कीजिए। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। जसद की बात करें और लियो की बात करें, और एक नंबर आप लोगों का लकी और आप लोगों का फायर साइन। आप लोगों के मामलात में हमेशा अल्लाह ताला ने बड़ी पेशरफ्त की है, चीज़ें ठीक रखी हैं और अल्लाह का ख़ास इनाम भी है। और सियारगान की पोजीशन में अल्लाह ने आपके सितारे को अहम मकाम, शम्स को जो और सितारों पर रोशनी डालता है और लोगों को तकवीयत देता है और लोगों को पावर देता है और अपने मामलात को साथ लेके चलता है दूसरे को भी। और थीम ऑफ द वीक में अगर बात करें, ओवरऑल आप लोगों का ये वीक बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और अच्छी पोजीशन में आप जाते हुए नज़र आते हैं। मगर आपकी पावर में, आपकी कुव्वत में जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं, कोशिश कीजिएगा कि किसी के साथ जो है चीटिंग ना हो पाए, किसी का दिल ना टूट जाए। अपनी पावर्स का, अपनी सलाहियतों का ऐसा जो है अजहार कीजिएगा कि सबको मोटिवेशनल तरीके से लेके चलिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको काफ़ी सलाहियतों से नवाजा है। इसलिए दिल नहीं टूटना चाहिए किसी का, जो भी लोग आपके साथ अटैच हों। और अगर मंडे की बात करें तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने होंगी, कई चीज़ें, कई काम, कई सलाहियतें, कई दौलत के अमूर, कोई घरेलू अमूर, काफ़ी कुछ आपके पास मौजूद होगा। कोशिश करेंगे तो इनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। ट्यूसडे वाले दिन अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को ज़रूर वक्त दीजिएगा, उनकी मशावरत से चलिएगा और बुज़ुर्गों के साथ जो ताल्लुक़ है उसको अहमियत दीजिएगा, क्योंकि आपके कामों के पीछे कोई दुश्मन देख रहा है, आपके कामों पे नज़र रखे हुए है कि आप किन किन जगहों पे अपनी सलाहियतों का इज़हार कर रहे हैं और कैसे अपने मामलात को आगे लेके जा रहे हैं।
बुध वाले दिन आपकी ज़िंदगी की तकरीबन नई शुरुआत है, खैर व बरकत और पैसे की फरावानी, कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, कोई पुराना पैसा मिल सकता है जो आप लोगों का रुका हुआ हो, या पैसे के मामला काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। कोई जॉब के मामलात हों या घरेलू मामलात हों, यहाँ भी आपके पैसे के इश्यूज़ हैं, काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद से पेशरफ्त होने वाली है। थर्सडे वाले दिन आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा अपने मामलात में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घरेलू मामलात के साथ, या आपके दोस्त अहबाब, या आपके लव अफेयर्स, या अपनी जो ज़िंदगी अज़दवाजी है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चले। सीधी सीधी बात करें, दरमियानी बात नहीं रखनी, ताकि जो रुकावटें हैं, जो मुश्किलें हैं, आपकी लचकाओं के रवैये से ख़राबी की तरफ ना जाए। और फ्राइडे वाले दिन आप लिख पढ़ करें अपने मामलात की, ज़िंदगी का पहिया आगे जाएगा, कोई आपका एग्रीमेंट साइन हो सकता है और पैसे का मामला भी सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। और सैटरडे वाला दिन तो आपको नया एग्रीमेंट देता हुआ नज़र आता है, जिनकी जॉब नहीं लगी जॉब मिलती हुई नज़र आती है, और जो तुलबा व तलबात एजुकेशन में मुश्किल का सामना कर रहे हैं, उनके जो एजुकेशन के मामलात सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। और जिनकी मंगनी और शादियों के इश्यूज़ हैं, सैटरडे वाले दिन एग्रीमेंट या निकाह की सूरत में कोई अच्छी खुशखबरी मिलती हुई नज़र आती है। और संडे वाला दिन आप क्योंकि कामों में थके होंगे, काम तो काफ़ी मौजूद होंगे, मगर आप सोच रहे होंगे कि इन कामों को कैसे किया जाए, या रिलैक्स हुआ जाए, या अपने आप को वक्त दिया जाए, और कोशिश करेंगे आप आराम ही करेंगे। और चीज़ें तो मौजूद हैं, आपको पता है अगला वीक भी आपने बड़े अच्छे तरीके से गुजारना है, इसलिए आपने इस वीक में कोशिश करनी है कि किसी का दिल ना टूट पाए, कि जिससे दिलों की नाराज़गी से अल्लाह नाराज़ होते हैं। और अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए तो फिर ऐसे कामों का, ऐसी चीज़ों का और ऐसी सलाहियतों का क्या फ़ायदा कि अल्लाह नाराज़ हो गए और अल्लाह वाले नाराज़ हो गए और अपने दोस्त अहबाब नाराज़ हो गए। सबको साथ लेके चले, सबकी सलाहियतों को साथ लेके चले, किसी को तन्हा ना छोड़ें। आज आप किसी का साथ देंगे तो कल अल्लाह ताला आपका साथ देंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर। एक बार जनाब बहलोल किसी नखलस्तान में तशरीफ़ रखते थे। एक ताजिर का वहाँ से गुज़र हुआ, वो आपके पास आया और सलाम करके मुअद्दब सामने बैठ गया और इंतहाई अदब से गुजारिश की, हजूर तिजारत की कौन सी ऐसी जिन्स खरीदूं जिसमें बहुत नफ़ा हो। जनाब बहलोल ने फरमाया, काला कपड़ा ले लो। ताजिर ने शुक्रिया अदा किया और उल्टे कदमों चलता वापस चला गया। जाकर उसने इलाके में दस्तयाब तमाम स्याह कपड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद शहर का बहुत बड़ा आदमी इंतकाल कर गया। मातमी लिबास के लिए सारा शहर स्याह कपड़े की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अब कपड़ा सारा उस ताजिर के पास ज़ख़ीरा था। उसने मुंह मांगे दामों फरोख्त किया और इतना नफ़ा कमाया जितना सारी ज़िंदगी ना कमाया था, और बहुत ही अमीर कबीर हो गया। कुछ अरसे बाद वो घोड़े पर सवार कहीं से गुजरा। जनाब बहलोल वहाँ तशरीफ़ रखते थे। वो वहीं घोड़े पर बैठे बोला, ओ दीवाने, अब की बार क्या लूँ? बहलोल ने फरमाया, तरबूज ले लो। वो भागा भागा गया और सारी दौलत से पूरे मुल्क के तरबूज खरीद लिए। एक ही हफ्ते में सब खराब हो गए और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। उसी खस्ता हाली में घूमते फिरते उसकी मुलाकात जनाब बहलोल से हो गई तो उसने कहा, ये आपने मेरे साथ क्या किया? जनाब बहलोल ने फरमाया, मैंने नहीं, तेरे लहजों और अल्फाज ने सब किया। जब तूने अदब से पूछा तो माला माल हो गया, और जब गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। इसीलिए कहा गया है, अल्लाह वालों के सामने, अल्लाह वालों के आगे आपका अंदाज़े बयां, आपकी सोच, आपका जहन, आपका बोलना इस अंदाज का होना चाहिए कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए जिससे बंदे की तकदीरें बदलती हैं वो तकदीरें ख़राब ना हो जाए। अपनी सोचों की भी हिफाजत करना पड़ती है, अपनी सलाहियतों की भी नफ़ी करना पड़ती है, अपनी मेहनत की भी नफ़ी करना पड़ती है। और जब किसी का हाथ सर पे आ जाए तो फिर उस हाथ की कदर करना पड़ती है और उसकी लाज रखना पड़ती है कि जो कहा जाए उसको कैसे माना जाए। ये एक रूहानी मामला है, ये एक बुज़ुर्गों का मामला है, ये एक औलिया अल्लाह का मामला है, ये एक रूहानी लाइन की बात है।
اس کو اس کی قدر سے پہچانو، اس کو اپنے انداز سے پہچانو، اس کو اپنے وجدان سے پہچانو، اس کو اپنے تخیلات سے پہچانو کہ انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت لے کے جاؤ گے، جیسی سوچ لے کے جاؤ گے، جیسا دھیان لے کے جاؤ گے وہی لے کے آؤ گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب نبی مکرم ایک گھر میں جاتے ہیں اور صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کمرے میں جو آپ نے یہ جو جگہ چھوڑی ہے، یہ جو ہوا کے لیے رستہ چھوڑا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اس لیے کہ کمرے میں ہوا آئے گی اور مجھے فائدہ ہوگا۔ تو نبی مکرم نے فرمایا اگر یہ نیت کر لیتے کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی اور اذان کی آواز کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں سے پرفضا جو ہوا بھی آئے گی، تو دونوں چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے نیتوں کا دارومدار ضرور آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم چلتے ہیں ورگو والوں کی ویکلی ہاروسکوپ اور پریڈکشن کی طرف۔ تو ورگو والے اس ویک میں کیا کرنے والے ہیں؟ تھیم آف دی ویک کیا ہے اور کون سے کام آپ کی زندگی میں معاون نظر آتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، مشورے کا ویک ہے اور صلاحیتوں کو کم استعمال کیجئے گا، دعاؤں کو استعمال کیجئے گا۔ مشورے کے ساتھ آپ نے اس ویک کو گزارنا ہے اور ایسے مشورے لینے ہیں جو آپ کی زندگی کے معاملات میں اثر انداز ہوں، اور خاص کر آپ کے اوپر آپ کے بزرگوں کا، آپ کے بڑوں کا اور آپ کے گھر والوں کا خاص دھیان اور توجہ نظر آتی ہے۔ تھیم آف دی ویک میں منڈے والا دن، آپ جیسے ہی منڈے والا دن گزاریں گے تو آپ کے کاموں کا پریشر، چیزوں کا پریشر یا آپ کے گھریلو معاملات کا پریشر آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گا۔ اس لیے منڈے والے دن آپ نے جذباتی نہیں ہونا، طریقے کے ساتھ، بہت دھیان کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو اور لوگوں کی باتوں کو سن کے گزارنا ہے۔ کوئی فیصلہ کرنا آپ کے حق میں بہتر نہیں آ رہا، خاموشی کے ساتھ اس پورے دن کو گزرنے دیجیے۔ پھر ٹیوزڈے والے دن آپ کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کوئی خاص آپ کی مدد ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ایگریمنٹ آپ کو کوئی نئی جاب دے سکتا ہے، نیا کام دے سکتا ہے، کوئی کاروبار دے سکتا ہے اور کوئی خاص اللہ کی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مگر بدھ والے دن آپ کا دل پھر تھوڑا سا ٹوٹ جائے گا، کوئی خاص کر اپنوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ارد گرد کے معاملات سے۔ اس لیے دل کے معاملات کو کنٹرول رکھیے گا، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ تھرسڈے والے دن پھر آپ کے اوپر آپ کے بزرگوں سے، آپ کے بڑوں سے، آپ کے اللہ کی طرف سے آپ کے معاملات میں خاص پیش رفت نظر آئے گی، اور پھر آپ کے پاس فرائیڈے والے دن پیسہ اور چیزیں اور کافی حد تک آپ کی پوزیشن مضبوط نظر آئے گی۔ اس لیے آپ نے اپنے معاملات کو خاص نظر کے ساتھ، اور خاص کر فرائیڈے والے دن آپ نے اپنے اہل و احباب کو، اپنے لو افیئرس کو، اپنے ارد گرد معاملات کو ٹائم دینا ہے، اور یہ ٹائم آپ کو آگے جا کے بہتری کی طرف لے جائے گا۔ سیٹرڈے والے دن آپ کی پوزیشن مزید مستحکم ہو جائے گی، آپ اچھی پوزیشن پہ بیٹھیں گے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور سنڈے والے دن آپ کے دشمن آپ کا پیچھا کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں، چیزیں کیسے، اور آپ کو نظر بد کا اور خاص کسی عمل کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے سنڈے والے دن آپ نے صبح اٹھ کے سب سے پہلے آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور اپنے معاملات کو ضرور دیکھنا ہے اور پڑھائی کر کے، وظیفہ کر کے گھر سے نکلنا ہے تاکہ معاملات میں پیش رفت ہو۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہم آپ کے فیڈ بیک کو اپنے کمنٹس کے ذریعے، جو آپ کمنٹس دیتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کی تمام جو چیزوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے کمنٹس ہمارے لیے سرمایہ ہوتے ہیں۔ لیبرا کی بات کریں اور برج میزان والوں کی بات کریں کہ آپ لوگوں کا ایئر سائن اور اس ویک میں ہلکا نیلا کلر ضرور پہننا، اور 6 نمبر لکی اور سفید کلر میں آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اور وہ پڑھائی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کس دن کرنی ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ مگر تھیم آف دی ویک میں لیبرا والوں کے لیے کام موجود ہوں گے، چیزیں موجود ہوں گی اور کرنا چاہیں گے، مگر طبیعت کی کاہلی اور سستی سے آپ نے اپنے کاموں کو آگے لے کے جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سستی کاہلی آپ کے کاموں پر اثر انداز ہو اور آپ اپنے کاموں کو بھرپور طریقے سے نہ کر پائیں اور چیزیں ٹھیک نہ ہوں۔ اس لیے آپ نے اپنے معاملات میں ضرور پیش رفت کرنی ہے اور معاملات کو آگے لے کے جانا ہے۔
थीम ऑफ द वीक में मंडे वाले दिन आपके पास ऑप्शन आ सकती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई आपको वालिदैन की तरफ से, कोई बुजुर्ग औरत की तरफ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जिसकी वजह से आप कोई काम कर सकते हैं। आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से आपको कॉल आ सकती है और चीज़ें ठीक हो सकती हैं और आपकी तबीयत में कोई ख़ास अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आती है। और मंडे वाले दिन आप रेड कलर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो रेड कलर आप लोगों के पहनने से आपके स्टार्स की कैफियत को बदल देगा, रूहानी सुकून देगा। ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों के माली मामलात में मदद मिल सकती है। माली मामलात थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, आप कई काम करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, मगर माली मामलात को ज़्यादा ठीक होना चाहिए, इसलिए आपने माली मामलात के ऊपर गौर करना है कि कहाँ रुकावट है, कहाँ चीज़ें ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत है। वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों को एक सॉलिड किस्म का पैगाम आने वाला है कुदरत की तरफ से। ये पैगाम आपको खुशियाँ दे सकता है, अच्छे हालात, कोई आप शादी की तरफ जा सकते हैं, या जिनको शादी के पैगामात नहीं मिल रहे थे, शादियां रुकी हुई थी, सॉलिड पैगाम है। ये पैगाम आपकी जॉब, नौकरी, किसी भी शोबे से आ सकता है, इसलिए इस पैगाम को नज़रअंदाज नहीं करना। थर्सडे वाले दिन आपके खैर बरकत, घरेलू माहौल में आसानियाँ, चीज़ें ठीक और पॉजिटिविटी नज़र आती है। कुछ कर सकते हैं, घरेलू माहौल में लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, लोगों के साथ रुजू करके अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप खैर बरकत के साथ अपने मामलात को गुजार सकते हैं और आप तफरी का माहौल बना सकते हैं और चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल नज़र आती हैं। सैटरडे वाले दिन आप अपने लव अफेयर्स को, घरेलू मामलात को या रूहानी मामलात को या अज़दवाजी मामलात को तवज्जो तलब तरीक़ों से आगे लेके जाएंगे और पेशरफ्त हो जाएगी। जो लव अफेयर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, सबके लिए अच्छी खबर है सैटरडे के दिन। संडे वाला दिन फिर वही आपके कामों की वजह से आपने सारा वीक गुजार लिया होगा और कामों के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं होगी जितनी देनी चाहिए, इसलिए संडे वाले दिन कोशिश कीजिएगा अपने कामों को भरपूर तरीके से गुजारिएगा, क्योंकि आपको पैसे के इशू का सामना करना पड़ सकता है और पैसे का इशू आपका हल ज़रूर होना चाहिए। इसलिए अपने मामलात को ख़ासकर रिज़्क़ के लिए ज़रूर आपने, जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ, आपने करना है, और वो आपने अगर ट्यूसडे वाले दिन सदक़े के साथ किया तो उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। आप लोगों ने आयत करीमा पढ़नी है 41 टाइम और सदका देना है आपने किसी येलो कलर की चीज़ का, या आप पैसे का सदका दे सकते हैं। 10, 20, 30 रुपए किसी फ़कीर को दे दीजिएगा, इंशाल्लाह चीज़ों में रुकावटें भी अल्लाह ताला दूर कर देंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। बुर्ज अकरब की बात करें, स्कॉर्पियो वालों की बात करें, इस वीक में आप लोगों के साथ कौन से मामलात होने वाले हैं, कौन सी अल्लाह की मदद आने वाली है, कौन से आपको इक़दामात करने चाहिए, और आप लोगों को हम बताने वाले हैं डे बाय डे प्रिडिक्शन। और डे बाय डे प्रिडिक्शन की जो ख़ास बात इस वीक में आप लोगों को थीम ऑफ द वीक बताएं तो थीम ऑफ द वीक में आप लोगों के कम्युनिकेशन के राब्ते, आप लोगों के साथ रवाबत, अपने रिश्तेदारों के साथ रवाबत, अपने कामों के साथ रवाबत, अपने शोबा के साथ रवाबत और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ रवाबत बढ़ने वाले हैं। टेलीफोनिक कॉल बढ़ सकती हैं और जो रुके हुए काम हैं आपके कम्युनिकेशन के शोबे से आपके होते हुए नज़र आएंगे। और ख़ासकर जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए भी बड़ी ख़ास जो है अपॉर्चुनिटी मदद मिलती हुई नज़र आती है। तो अब हम चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। अगर हम मंडे वाले दिन की बात करें तो पीर वाला दिन आपके लिए सॉलिड इन्फॉर्मेशन लाता हुआ नज़र आता है। आप अपने कामों के लिए जो सीवी, जो चीज़ें या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी है उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपका किया गया काम आपकी पोजीशन को आगे लेके जाएगा। और ट्यूसडे वाला दिन जो है वो एक नई शुरुआत है। कई चीज़ें जो पहले चल रही थी वो रुक जाएंगी या चीज़ें बिल्कुल जो चल रही थी डेड हो जाएंगी और आप सोचेंगे कि अब मुझे अपने रास्तों को, अपनी ज़िंदगी को किस डगर पे लेके जाना है, किस अंदाज के साथ आगे अपने मामलात में मदद चाहिए या मदद आपकी मुशावरत से किस तरफ आपको लेके जाएगी।
वेडनेसडे वाले दिन आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई आप लोगों की जिनकी सीवीज नहीं जमा या जिनके मामलात रुके हुए हैं उनको एक नई जॉब का, नए कैरियर का आगाज़ मिल सकता है और ये आगाज़ आपके कामों में मावन साबित हो सकता है। थर्सडे वाले दिन आप लोगों के लव अफेयर्स के मुताल्लिक अच्छी खबर है और चीज़ें ठीक हैं, नई शुरुआत है, अल्लाह की तरफ से ख़ास एनर्जी मिलेगी, पैसे की शक्ल में, चीज़ों की शक्ल में, मामलात की शक्ल में। जुमेरात वाले दिन अल्लाह की बुज़ुर्गों की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। फ्राइडे वाला दिन खुशियों वाला दिन आ रहा है, आप अपनी फैमिली को वक्त देंगे, अपने घर वालों को वक्त देंगे और खैर व बरकत के साथ कोई भी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, तालीमी रुझानात को ठीक कर सकते हैं तलबा तालबात, और जिनकी शादियों के इश्यूज़ हैं अपनी शादियों की डेट डाल सकते हैं। जुमे का दिन बेहतर नज़र आ रहा है। सैटरडे वाले दिन आपको कोई ख़ास अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी, कोई काम, कोई नया काम मिलता हुआ नज़र आता है और ये नया काम आपके कैरियर में मावन साबित होगा। संडे वाले दिन भी आपके मामलात में बड़ी पेशरफ्त होगी, खुशी खुशी आप वक्त गुजारेंगे और इस वीक में आप इंजॉय करेंगे और ये इंजॉय तरह डिफरेंट किस्म का होगा। टेलीफोन लोगों से करके, राब्ते करके आप खुश होंगे, इसलिए राब्तों को बढ़ाइए, रिश्तेदारियों को ठीक कीजिए और अहलो अयाल को वक्त दीजिए। अल्लाह आपका, आपके घर वालों का हम ये नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। जुनैद बगदादी कहते थे कि मैंने इखलास एक हजाम से सीखा। एक मेरे उस्ताद ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए हैं, अब कटवा के आना। जेब में पैसे कोई नहीं थे, हजाम की दुकान के सामने पहुंचे तो वो गाहक के बाल काट रहा था। उन्होंने अर्ज़ की, चाचा अल्लाह के नाम पे बाल काट दो। ये सुनते ही हजाम ने गाहक को साइड पर किया और कहने लगा, पैसों के लिए तो रोज़ काटता हूँ, अल्लाह के लिए आज कोई आया है। अब उनका सर चूम के कुर्सी पे बिठाया, रोते जाते और बाल काटते जाते। हज़रत जुनैद बगदादी ने सोचा कि ज़िंदगी में जब कभी पैसे हुए तो उनको ज़रूर कुछ दूंगा। अरसा गुजर गया, ये बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग बन गए। एक दिन मिलने के लिए गए, वाक़या याद दिलाया और कुछ रकम पेश की तो हजाम कहने लगा, जुनैद तू इतना बड़ा सूफ़ी हो गया, तुझे इतना नहीं पता चला कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए उसका बदला मखलूक से नहीं लेते। तो जब भी कभी काम अल्लाह के लिए किया जाए और अल्लाह वालों के लिए किया जाए और खालिस जिसमें नीयत ही अल्लाह की हो, तो उसमें ये नीयत कभी ना रखना कि मखलूक आपको फ़ायदा दे, और ये बात भी याद रखना कि मखलूक से फ़ायदा लेना ये भी बात ठीक नहीं है कि आप अल्लाह को छोड़ के मखलूक से फ़ायदा ले रहे हैं। ये बात भी ज़रूरी है कि मखलूक से फ़ायदा लेना भी है, मगर अगर मखलूक ने फ़ायदा दिया तो आपने अगर सोच लिया कि ये मखलूक फ़ायदा दे रही है, अल्लाह फ़ायदा नहीं दे रहे, तो वहाँ भी पकड़ हो जाएगी। मखलूक से फ़ायदा लेना ये नहीं कि मखलूक से फ़ायदा ना लिया जाए, बल्कि जो मखलूक फ़ायदा दे ये सोचा जाए कि ये अल्लाह से फ़ायदा मिल रहा है। ये है अहम बात, ये है वो बात जो अल्लाह वालों से मिलती है, बुजुर्गों से मिलती है। इसलिए किसी भी चीज़ से फ़ायदा हो, चाहे मेहनत हो, चाहे सलाहियत हो, चाहे पैसा हो, चाहे दौलत हो, चाहे वजीफ़ा हो, चाहे अमल हो, कुछ भी हो, फ़ायदे का तल्लुक़ अल्लाह से है। अपनी सोच में अल्लाह को रखना, अपनी सलाहियतों में अल्लाह को रखना, अपनी मेहनत में अल्लाह को रखना और अल्लाह को तन्हा छोड़ना कि अल्लाह के बगैर शायद कुछ हो जाए, ये बात ठीक नहीं है। अल्लाह के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कोई एक पत्ता तक, बल्कि दिल में ख्याल भी अल्लाह के बगैर नहीं आ सकता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी सलाहियतों से कुछ हो गया? हम कैसे कह सकते हैं हमारी मेहनत से सब कुछ मिल गया? हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी कोशिशों से मिल गया? ये बात पकड़ का बायस भी बन सकती है। तो हम बात करते हैं इस वक्त बुर्ज कौस की। बुर्ज कौस जिनका सितारा मुश्तरी और जुमेरात का दिन फेवरेट और 3 नंबर लकी के ये थीम ऑफ द वीक में आप लोगों के मामलात क्या रहेंगे? बुर्ज कौस वालों के लिए इस वीक में खासकर आप लोगों के दुश्मन एक्टिव रहेंगे, इसलिए थीम ऑफ द वीक में आपने जो लोग आपके मुखालफ हैं, आपके घरेलू मामलात में, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, आपके रिश्तेदारों में, आपने उनका
ख्याल रखना है कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे। मंडे वाला दिन जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आएगा तो मंडे वाले दिन में आप लोग सुकून की तलाश और खैर व बरकत की तलाश और कुछ करने की तलाश में रहेंगे और रूहानी सुकून लेने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप नमाज़ों की पाबंदी और अल्लाह की तरफ अपने मामलात को राग़ब कीजिए कि आपका ध्यान अल्लाह की तरफ जाए। ट्यूसडे वाले दिन सॉलिड पैगाम मिल सकता है और अच्छा पैगाम आपकी जॉब से, अपने काम से, आपके किसी भी शोबे से, खासकर कैरियर के मुताबिक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता हुआ नजर आएगा। ट्यूसडे का पैगाम आपके मामलात में मुआवन रहेगा, इसलिए जो पैगाम मिले उसको ध्यान से और नज़रअंदाज नहीं करना। वेडनेसडे वाले दिन आपको कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ख़ास मदद मिलेगी। पैसे की मदद हो सकती है या चीज़ों की मदद हो सकती है या मामलात की मदद हो सकती है और अल्लाह का ख़ास करम मिलेगा। थर्सडे वाले दिन आप लोगों के मामलात में भी ख़ास अल्लाह की रहमत है, पैसे की फरावानी, चीज़ें ठीक और कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। शादी से रिलेटेड, लव अफेयर से मुतल्लिक, एजुकेशन से मुतल्लिक कोई भी काम करना चाहें तो थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन वैसे ही आप लोगों के लिए फेवरेट है। बुजुर्गों के पास बैठ के उनकी मदद भी लीजिएगा। थर्सडे वाला दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। फ्राइडे वाले दिन आप लोगों की कम्युनिकेशन, राब्ते बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, रिश्तेदारों को टेलीफोन कॉल्स करेंगे और आप लोग फ्राइडे वाले दिन अपने दोस्त अहबाब को बुलाकर भी मुलाकात कर सकते हैं, इसलिए रवाबत का दिन नज़र आता है। सैटरडे वाले दिन आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को टाइम देंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। मगर संडे वाले दिन आपका दुश्मन फिर एक्टिव है, आपकी खुशियों को पकड़ा जाएगा, आपके घरेलू मामलात को ख़राब किया जाएगा, सर दर्द हो सकता है और ख़ासकर किसी जादूगर का या कोई नज़र बद का अटैक हो सकता है, इसलिए एहतियात से गुजारना है संडे वाला दिन। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज जद्दी की बात करें, सितारा ज़ोहल वालों की बात करें कि आप लोगों के लिए ये वीक कैसा होने वाला है और आप लोगों का अर्थ साइन 8 नंबर लकी, खाकी और नीला कलर पहन सकते हैं और आप लोगों का अकीक जेमस्टोन आप लोगों के मामलात में मामून साबित हो सकता है। लाजवर्थ जेमस्टोन भी आप लोग पहन सकते हैं। और अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं थीम ऑफ द वीक में। थीम ऑफ द वीक में आप लोग अच्छी पोजीशन पे बैठेंगे और मामलात सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें आपके हाथ आ जाएंगी। आखिरकार आप फैसला करेंगे आपने अपनी डायरेक्शन, अपनी ज़िंदगी और अपने मामलात को किस तरफ लेके जाना है और जो मायूसी के मामलात आपके निकलते हुए नजर आएंगे और आप अच्छे फैसले की तरफ चले जाएंगे। मंडे वाले दिन आपको कुदरत की तरफ से कोई खास अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई पैसे की फरावानी, पैसा मिल सकता है या आपके रुके हुए मामलात ठीक हो सकते हैं। दौलत का या जॉब का या कैरियर का आगाज हो सकता है। ट्यूसडे वाले दिन आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री या कहीं भी जा सकते हैं जिससे आपके मामलात में पेशरफ्त हो सकती है और चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी, अल्लाह की मदद आएगी या आप बैरून मुल्क सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। बुध का दिन आप लोगों के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, सरदर्द, तबीयत की खराबी या हासदीन की नज़र और ख़ासकर कोई रूहानी मसला आपके साथ अटैच हो सकता है। और थर्सडे वाले दिन आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कामों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से चीज़ें ठीक हो जाएंगी और घरेलू माहौल भी आपका बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। कहीं से कोई पैसा मिल सकता है और रूहानी सुकून के लिए आपके लिए फ्राइडे का दिन भी आ रहा है। फ्राइडे वाले दिन आप किसी ख़ास जगह पे, कोई ख़ास मस्जिद, दरबार या कोई ख़ास रूहानी जगह पर जाकर बैठ के अपने लिए दुआ करेंगे और अल्लाह की मदद लेने की भरपूर कोशिश और अल्लाह के साथ आंसुओं के साथ अपना तल्लुक बनाने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला आपके मामलात में मावन भी साबित होंगे। सैटरडे वाले दिन आपके पास सॉलिड पैगाम आ सकता है, कोई ख़ास खबर आ सकती है, कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी आ सकती है और ख़ास मकसद ज़िंदगी मिल सकता है। मगर संडे वाले दिन आपके जो अंदर की बात है, कोई राज की बात है या चीज़ें वो डिस्टर्ब होगी, इसलिए आप परेशान महसूस करेंगे, अपने मामलात में कोई रुकावट महसूस करेंगे। इसलिए आपने सदका खैरात के ज़रिए और पढ़ाइयों के ज़रिए ज़रूर इस दिन को गुजारना है और पॉजिटिव रह के गुजारना है। अल्लाह आपका, आपके घर वालों का हामी नासिर। एक्वेरियस बुर्ज दिलों की बात करें और सितारा ज़ोहल वालों की बात करें कि आप लोगों का आने वाला वीक कैसा रहेगा
आप लोगों की प्रिडिक्शन ऑफ द वीक क्या है और थीम ऑफ द वीक क्या है। थीम ऑफ द वीक तो एक्यूरियस वालों के लिए आपके मामलात में जज्बातियत, तेज़ी और बहुत कुछ कर गुजरने की जो हिम्मत है वो नज़र आती है। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ करने का आपका जो अंदिया है वो इस वीक में आप लोगों के साथ रहेगा। और मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन भी आप लोगों को 2-3 ऑप्शन या 2-3 काम नज़र आते हैं जो आप कर सकते हैं, और वो जो आप अगर काम करेंगे तो आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिलेगी। आउट ऑफ सिटी भी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, ऑप्शन मौजूद हैं आप लोगों के लिए। ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों के पास 3-4 काम तो मौजूद होंगे और एक ख़ास ऑप्शन आएगी। उस ऑप्शन के ऊपर अगर आप काम करें, खासकर रिज़्क के मामला, तो शायद आपका सोच विचार जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाए, इसलिए सोच विचार का दिन होगा। वेडनेसडे वाले दिन आप लोग कोशिश करेंगे अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, अपने घरेलू मामलात या और चीज़ें ठीक करने के लिए आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है। और आप अपने रूहानी सुकून के लिए या अपनी फैमिली के साथ भी आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं। थर्सडे वाला दिन आप लोगों के मामलात के लिए मुश्किल का सामना लेके आ रहा है। कोई है जो आप लोगों के पीछे लगा हुआ है, जो आपके मामलात को ख़राब कर रहा है। कोई ऐसा बंदा मौजूद है आपकी फैमिली में जो आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए अपने मामलात को रूहानी तरीके से देखिएगा कि कौन है जो आपके मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, ख़तरा मौजूद है। और फ्राइडे वाले दिन आप लोग अच्छी पोजीशन पे ठीक नज़र आएंगे और खुश नज़र आएंगे, अपने आप को ज़रा बेहतरी के साथ आगे बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। कोई काम आ सकता है, कोई चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कोई पैसे के इशूज़ हल होते हुए नज़र आएंगे। सैटरडे वाले दिन आप लोग अपने नए इरादे, नई सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे और मामलात बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और संडे वाले दिन आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, हर किसी के साथ टू दी पॉइंट बात करेंगे और एक्यूरेट बात करेंगे, और एक्यूरेट बात ही आप लोगों की बेहतरी की तरफ लेके जाती है। मगर इतना एक्यूरेट बात ना कीजिएगा कि कोई आपका दुश्मन हो जाए, क्योंकि आपके साथ चीटिंग होने के चांसेस इस वीक में मौजूद हैं। रूहानी मसला मौजूद है और रूहानी रुकावटें भी मौजूद हैं। अपने मसले के हल के लिए ज़रूर अल्लाह की मदद और कोई पढ़ाई या वजीफ़ा कीजिएगा जिससे आपके मामलात में अल्लाह की मदद आए। अल्लाह आपका हम नासिर। आप बदी को बेशक बुरा समझो, लेकिन बद को बुरा ना समझना। बद आदमी बीमार है। जिस तरह डॉक्टर बीमार आदमी को देखता है तो ये नहीं देखता कि उसका ईमान क्या है। डॉक्टर का काम है, चाहे मरीज़ ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई हो, उसका इलाज करना। डॉक्टर ने उसका इलाज करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि बदी भी एक बीमारी है। बदी उसका पसंदीदा अमल नहीं है, बल्कि इस बीमारी है कि वो मजबूर हो गया, वो बंदा परेशान हो गया, बीमार हो गया, फॉल कर गया, गिर गया। वो बंदा जब गिरता है वो बदी के ट्रैप में आ जाता है। और आपको अच्छा रास्ता मिल गया, खुशगवार बंदे मिल गए, उसको वो रास्ता मिल गया और नाखुशगवार बंदे मिल गए। अब उस बेचारे को हमदर्दी से वहाँ से निकालो, इसलिए उसे नफ़रत नहीं करनी कि ये आदमी गुनाहगार है। शायद नफ़रत ने ही उसको गुनाहगार बनाया हो, और ऐसा हो सकता है कि आपकी मोहब्बत ही उसको गुनाह से वापस ले आए, और इसलिए आप उसके साथ मोहब्बत करो, उसके पास आना जाना रखो, शायद वो अपना रास्ता बदल दे। उसे नफ़रत नहीं करनी, बल्कि उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। उस गरीब की बीमार पुरसी करो जो बद हो गया, जो गुनाहगार हो गया। वो तो खुद अजाब में है, लिहाजा उसके साथ हमदर्दी करो, उसके लिए दुआ करो, नफ़रत ना करना, उसका साथ दो। कैसा साथ दो कि अल्लाह ने भी तो आपका साथ दिया है ना। अल्लाह ने अगर आपको सीधे रास्ते के ऊपर लगाया हुआ तो ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की नवाज़िश है, ये अल्लाह की रहमतें हैं कि उन्होंने आपको सीधे रास्ते पे लगाया हुआ है। और उसको अगर शैतान ने, इब्लीस ने भटका दिया है और वो अगर रास्ते से गिर गया है और वो घबरा गया है, तो हमारा काम करना बनता है उसको हौसला देना, उसकी उम्मीद की ढारस बनना, उसका ख्याल करना, उसको अपना समझना, उसका हौसला बनना, उसकी उम्मीद बनना।
اس کو اپنا سمجھنا اور بہت اپنا سمجھنا، تاکہ وہ بھی اسی رستے پہ آ جائے جس رستے پہ آپ ہو، آپ بھی فلاح کے رستے پہ ہو۔ اس کو فلاح کے رستے پہ لانا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، ہم سب کا کام ہے۔ اور اگر ہم پائسس کی بات کریں، برج حوت کی بات کریں، تو تھیم آف دی ویک میں آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ آیا ہوا ہے، چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ اس ویک میں بہت کچھ چینج ہونے والا ہے۔ جس طرح طبیعت پہ بوجھ ہے، اس طرح روحانی مشکلیں اور پریشانیاں اور کئی چیزیں آتی ہوئی اور کئی چیزیں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس لیے اس ویک میں پریشرائزڈ رہیں گے، اس لیے پازیٹیو طریقے سے سوچنا ہے۔ منڈے والا دن نئی شروعات کا دن ہے۔ منڈے والے دن کاموں کا آغاز اچھے طریقے سے ہوگا، چیزیں ٹھیک ہوں گی اور معاملات میں کافی پیش رفت ہوگی۔ جن کے کام رکے ہوئے ہیں وہ کام بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ منڈے والے دن میں آپ نئے کام کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ٹیوزڈے والا دن احتیاط سے گزارنا ہے، کسی سے اونچی نیچی بات نہیں کرنی جس سے معاملات میں ڈسٹربنس ہو، یا نئی شروعات ہو سکتی ہیں، شاید نئی جاب، نیا کام یا نئی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے۔ ویڈنسڈے والے دن آپ کو اچھی خاصی اللہ کی طرف سے اپرچونٹی ملے گی، چیزیں کافی حد تک کنٹرول میں ہوں گی، بہتر ہوں گی۔ اور تھرسڈے والے دن سالڈ پیغام، کوئی ایگریمنٹ کا جو سائن ہے، کوئی جاب، کوئی رشتوں میں رکاوٹیں، چیزیں سالڈ پیغام اللہ کی طرف سے آن موجود ہوگا۔ اور فرائیڈے والے دن آپ ذہنی سکون اور پیسے کا جو مسئلہ ہے اس کا حل ہوتے ہوئے اور کوئی خاص اپرچونٹی ملتے ہوئے محسوس کریں گے۔ سیٹرڈے والے دن آپ انجوائے کریں گے اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تھرڈ پارٹی سچویشن میں سچویشن آپ کی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ سنڈے والے دن میں آپ کو غصہ، جذباتیت، لڑائی والا ماحول اور ایسی طبیعت کے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، کوئی بحث ہو سکتی ہے، اس لیے بحث سے بچنا ہے، غصے میں نہیں رہنا اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ تھیم آف دی ویک میں جو بد اثرات ہیں، اپنا ضرور روحانی چیک اپ خود کر لیجئے گا یا کسی سے ضرور کروائیے گا کہ کیوں رکاوٹیں ہیں، کیوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹس کرنا نہیں بھولنا۔ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے ایک خاص ویڈیو لے کے آتے ہیں جس میں آپ کے سوال و جوابات کا ایک خاص سیشن رکھا ہوتا ہے، جس میں ہم آپ لوگوں کے معاملات کو نمرولوجی سے، ایسٹرولوجی سے، پامسٹری سے، ٹیرو کارڈ سے اور روحانیت سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے اور قرآن و سنت سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اس میں اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور خاص کر اپنا مسئلہ ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ ہم کوشش کریں گے آپ لوگوں کے تمام مسائل کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے پاس میسج کنوے کرنے کہ آپ کے جو معاملات میں رکاوٹیں وہ کیسے دور ہوں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے نمبر کے اوپر جو ہمارا نمبر چل رہا ہے اپنی مسئلے کو ڈسکس کر سکتے ہیں، تفصیل بھیج سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گی۔ وہ اپوائنٹمنٹ سے ہم آپ لوگوں کا پرسنل جو مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو خاص پڑھائی یا وظیفہ ہوگا یا عمل ہوگا وہ میں خود کر کے آپ کے معاملات کو سالو کرنے کے لیے تھرو اللہ سے، بزرگوں سے اور قرآن و احادیث اور جو بھی کوشش ہوگی روحانی کوشش، اس کو سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا اور بہت ساری ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ آئندہ ویک دوبارہ ہم آپ سے ملیں گے۔ آئندہ ویک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔